समझ रहे? आई एम नॉट ashamed, मैं लज्जाता नहीं, ये शर्म का कारण नहीं है मेरे लिए। This is not a point that I should be ashamed of. वो क्या सोचेगा, हाँ, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? What will he think? What will the second person think? No, you don't have to think. समझ, सुसमाचार मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। Gospel आज is मैं not- शर्म नहीं खाता कि मैं चर्च जाता हूँ। Gospel is not a shame. Going to church is not a shame. आज मैं शर्म नहीं खाता कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। I'm reading the word. I'm not feeling shame. आज मैं अपना अच्छा जीवन जीता हूँ, इसकी मुझे शर्म नहीं है। I'm living a good life. I'm not ashamed. आज किस बात की शर्म कलीसिया खा रही है? Which what thing is the church being ashamed of? नशों today? से आजाद होके एक अच्छा जीवन जीना, ये शर्म की बात है। Being freed from the drinking and all those curses and being set free. प्रभु ने चंगा कर दिया और खड़ा कर दिया, ये शर्म की बात है। God has made you. God has healed you and made you stand. Is that a आज thing of being आपके shamed? बच्चे पाप छोड़ के एक पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, क्या ये शर्म की बात है? Your children have left the sin and started to walk in righteousness. Is this a shame? लिखा हुआ है कि और मैं परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। It's mentioned that I have been separated for the evangelism. आज हमें सुसमाचार को समझना है। Today we need to understand evangelism, gospel, good news. हमें सुसमाचार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उसे समझना है। We need to understand that what is our duty towards the gospel. आज हमें सुसमाचार की सामर्थ्य को जानना We है। need to understand the strength of gospel. सुसमाचार क्या कर सकता है आज हमें समझना है। We need to understand what can the gospel do. हालेलुया। Hallelujah. बहुत लोग इस सुसमाचार की सामर्थ्य से वंचित हैं, A lot of people, इसीलिए डरा हुआ जीवन जी रहे हैं। a lot of people do not know the power of gospel, so that is the reason they are fearful. जब आप इस सुसमाचार को समझ गए, आप हियाव के साथ चलना शुरू When you करोगे। understand the power of this gospel, you will live a life of a आप conqueror. निडरता के साथ चलोगे, You will walk with fearless. आप दृढ़ता के साथ You चलोगे, will walk with power. आप सताव विरोध में भी आनंद के साथ चलोगे। Even in persecution, you will walk with जब joyful heart. आप इस सुसमाचार की सामर्थ्य को पहचान When गए। you understand the power of this gospel. ऐसी क्या चीज थी जो पौलुस को इतनी कठिनाई और संघर्ष सहने के बाद भी रुकने नहीं और थमने नहीं देती थी? What was that thing that after Paul having so many issues, got so much persecuted, but the thing that kept him going in front? यीशु ने 39 कोड़े एक बारी खाए, पौलुस ने 3 बारी खाए। The word of God says that Jesus took 39 once, but Paul had taken it thrice. हम देखते हैं किस प्रकार वो उसने समुद्रों में रातें बिताई, We've seen that how Paul stayed in the ocean for उस oceans पर for days. पथराव हुआ। How he was stoned. जब पथराव हुआ, बंदे को तब तक पत्थर मारते थे जब तक वो मर ना जाए। It is said that when they usually should stone a person, when they stoned a person till his death, they had stoned him. But पर हम देखते हैं वो मर ही गया था और प्रभु ने श्वास फूका, और जब वो उठा, उसका पहला प्रश्न अपने जो आसपास के लोग थे उनसे ये था कि अगली जगह कौन सी है जहां पे मुझे जाकर सुसमाचार प्रचार करना when है। he was stoned, it is said that he was half dead. But when the power came, he just got up and asked that which is the next place that we need to share the gospel in. उसने ये नहीं पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ है, He did not ask where the hospital is. उसने ये नहीं पूछा कि छुपने की स्थान कहाँ He है, did not ask where do I need to hide. उसने ये नहीं कहा कि फटाफट मुझे ले जाओ यहाँ से, छुपाओ मुझे। I did not say that take me away from this place, take me to a shelter. ऐसी क्या बात थी कि अभी मौत के मुंह से बाहर आया, पत्थराव हुआ है और अब बोल रहा है कि मुझे जाना है, कहाँ है What was the अगला thing? स्थान? What was the thing that though he was stoned to death, he got up and he had that fearless in himself. अगर आज कलीसिया सुसमाचार की सामर्थ और गहराई को पकड़ ले, थाम ले, If you understand the power of the gospel today, you need to understand this. आपका चलना सेम नहीं रहेगा। अगर आप सुसमाचार की सामर्थ को Your पहचान walk पाए। will not be the same. पतरस यूहन्ना
उनको बुलाया, उनको मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि यीशु के नाम से नहीं बोलना। Peter and John, when they were called, they were told not to preach for Jesus. और वो गिने चुने थे, उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी बहुत ज्यादा, And they were just some of them, few of them that were just counted. और उन्हें मारा जा रहा है अधिकारियों के They द्वारा, do not have a big strength. They were being hit and told not to उन्हें preach the दबाया जा रहा gospel. है, उन्हें And they are being told उन्हें not to. धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें They are being scared. उन्हें बंदी गृह में डाला जा रहा है, They are being under the prison. यीशु के नाम से नहीं बोलना। They are telling that you don't have to preach in the name of Jesus. और हियाव से एक ही उत्तर उन्होंने दिया। Just one thing that they spoke इतने मार खाने के बावजूद after being hit so much. निडरता और हियाव के साथ उन्होंने उत्तर दिया, तुम बताओ They were तुम्हारी सुने या परमेश्वर की सुने। They were fearless and just said one thing, that should we listen to you or should we listen to Christ? यीशु ने कहा जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, Jesus- सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। Jesus said that go to the all nations and preach the gospel. और तुम कह रहे हो कि प्रचार नहीं करना। And you are telling that we should not preach? अब तुम्हारी सुने या प्रभु की। Whom should we listen to, you or God? ऐसा क्या हियाव और दृढ़ता उनके अंदर थी, सुसमाचार की गहराई को वो पहचान गए। What was that thing that made them bold and fearless, that they understood the gospel so much? सुसमाचार की सामर्थ। The strength of the gospel. फिर आप ठहर नहीं सकते, Then you do not stop. फिर दबाव से आप रुक नहीं सकते, Then by any pressure you are not stopped. सताव विरोध से आप थम नहीं सकते। By persecutions you are not staying back. आप जाते हो उसका सुसमाचार You लेके। go and share the gospel of Christ. हालेलुया। Hallelujah. आप थम नहीं सकते। सुसमाचार की Gospel. सामर्थ। 14 से भी मैं चाहता हूं पढ़ना शुरू करें। Let's read from the verse 14. मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। लगा के रखो 16 को। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। For I am not ashamed of the gospel of Christ. समझ रहे? आई एम नॉट अशेम्ड। मैं लजाता नहीं, ये शर्म का कारण नहीं है मेरे लिए। This is not a point that I should be ashamed of. वो क्या सोचेगा, हाँ वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। What will he think? What will the second person think? No, you don't have to think. समझो, सुसमाचार मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। Gospel आज is मैं not- शर्म नहीं खाता कि मैं चर्च जाता हूँ। Gospel is not a shame. Going to church is not a shame. आज मैं शर्म नहीं खाता कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। I'm reading the word. I'm not feeling shame. आज मैं अपना अच्छा जीवन जीता हूँ, इसकी मुझे शर्म नहीं है। I'm living a good life. I'm not ashamed. आज किस बात की शर्म कलीसिया खा रही है? What thing is the church being ashamed of नशों today? से आजाद होके एक अच्छा जीवन जीना, ये Being- शर्म की बात है। Being freed from the drinking and all those curses and being set free. प्रभु ने चंगा कर दिया और खड़ा कर दिया, ये शर्म की बात है। God has made you, God has healed you and made you stand. Is that a thing आज of being आपके shamed? बच्चे पाप छोड़ के एक पवित्रताई का जीवन जी रही है, क्या ये शर्म की बात है? Your children have left the sin and started to walk in righteousness. Is it a shame? ठेकों पे नशे करके, गालियां निकाल के, गलत हरकतें करके लोग शर्म नहीं खाते, और आज क्या हम कलीसिया में, चर्च में बने रहने के कारण शर्म खाएं? People are drunkards, they are abusing and they are not being ashamed of. But why we today being coming to the word, coming to the church and feeling ashamed of? पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, Paul specifically tells that I am not ashamed of the gospel. क्योंकि वो विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ For है। it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. बोलो उद्धार के निमित्त The salvation, परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो सुसमाचार gospel, उद्धार के निमित्त power of God परमेश्वर की सामर्थ है। unto salvation. हालेलुया। आज एक सुसमाचार ऐसी सामर्थ जो एक व्यक्ति जो अनंत काल के लिए उस आग की झील में जा रहा है, उसको बचाकर अनंत काल के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा सकती है। ऐसी सामर्थ है सुसमाचार।
Gospel is so powerful that a person who is going on the door towards the hell, it can change the destiny of a person and bring him into heaven. अनंत काल की मंजिल बदल सकती है सुसमाचार. The everlasting life can be changed by believing on the gospel. अब समझ रही हो? सुसमाचार मेरे लिए लज्जा का कारण नहीं, पर मेरे लिए सामर्थ्य, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य. What is gospel? It's not being ashamed of, but a power of your belief. यीशु क्या कहता है? मेरा अभिषेक किया गया है What did Jesus say? I am anointed सुसमाचार सुनाने के लिए. for spreading the gospel. हालेलुया. Hallelujah. सुसमाचार सुनाने के लिए. For spreading the gospel. समझ रहे हो कि नहीं? How many of you understand? सुसमाचार सुना, सुसमाचार की सामर्थ्य. The strength, the power of the gospel. हालेलुया. Hallelujah. हियाव से बोलते थे, निडरता से बोलते थे, हियाव से. They spoke with boldness, with strength, with power. पौलुस बात करता है जब हम पढ़ते हैं कि मैं उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं. Paul tells that I have been separated for the gospel. समझ रहे हो? सुसमाचार के लिए अलग किया Do you गया. understand? Separated for the gospel. अलग किसके लिए? सुसमाचार. Why being separated? For the gospel. पहला कुरिन्थियों 1 उसका 1 अगर आप लगाओ. 1 Corinthians 1, the verse 1. Chapter 1, verse 1. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसिथनेस की ओर से हाँ. परमेश्वर यस लगाओ 1. पौलुस की और जो प्रभु की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है. Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. और समझ रहे हो? सबसे पहले वो सुसमाचार के लिए अलग किया गया और उसके बाद सुसमाचार के लिए बुलाया गया. First he was separated for the gospel, then he was called for the gospel. हालेलुया. Hallelujah. गलातियों 2 उसका 7. The book of अगर हम पढ़ें. Galatians, chapter 2, verse 7. परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया. हालेलुया. मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया. सुसमाचार का काम सौंपा गया. What is written? That the work of the gospel was given unto me. अब समझ रही हो? सुसमाचार के लिए अलग किया गया, सुसमाचार के लिए बुलाया गया और सुसमाचार का काम सौंपा गया मुझे. Being separated for the gospel, being chosen for the gospel, and then being told to do the work of gospel. हालेलुया. Hallelujah. सुसमाचार. Gospel. आप जवाबदेही होते हो, आप जिम्मेदार होते हो. आपको सुनाने के लिए बुलाए गए हो. When you are chosen for gospel, you are responsible. You need to answer to the Lord. अब समझ रही हो? How many of you understand? जो तोड़े उनको मिले वो उनके जवाबदेही थे. प्रभु ने आकर उनके विषय में पूछा. When they were given those things, they were accountable. अब समझ रहे हो? हम कोई भी चीज प्रभु से पाते हैं उसके विषय में हम जवाबदेही होते हैं. When we get something from the Lord, we are answerable to the Lord. प्रभु ने 5 उसको दिए, प्रभु ने 2 उसको दिए, प्रभु ने 1 उसको दिया. One was given 5, second 2, and third 1. जब वो स्वामी आया उसने 5 से भी पूछा, हाँ भी क्या किया तूने? उसने 2 से भी पूछा, क्या किया तूने? उसने 1 से भी पूछा, तूने क्या किया? When the master came, he asked all of them that what did you do of 5, what did you do of 2, and what did you do of 1. तो जब हम इस बात को समझते हैं कि सुसमाचार सौंपा गया, And if we understand that we are given the gospel to spread, to share, इसका मतलब हमारी जवाबदेही है परमेश्वर को It is उस that- सौंपे हुए सुसमाचार के it लिए. is that we are answerable to the Lord for us sharing of the gospel as it is given by the Lord. हालेलुया. Hallelujah. फिलिपियों 1 उसका 16 भी. Book of Look up. Philippians, chapter 1, verse 16. कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं. ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं. अब समझ रहे हो? इसका मतलब मैं सुसमाचार को डिफेंड करने के लिए बुलाया गया हूं. That I have been called to defend the gospel. जब लोग सुसमाचार
पर उंगलियां उठाते हैं, तो मैं सुसमाचार के लिए खड़े होने के लिए बुलाया गया When हूं. people question the gospel, a person, he stands for the gospel, defending it. सुसमाचार के विरोध बोलते हैं, मैं खड़े होने के लिए बुलाया गया हूं. When people speak about the gospel, you are standing, you need to defend, you need to speak about the gospel. आप समझ रहे हो? How many of you understand? पौलुस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, Paul was वो separated for बुलाया गया, gospel. He was उसे called. सुसमाचार सौंपा गया He was- और वो ठहराया गया सुसमाचार की रक्षा करने के, सुसमाचार को डिफेंड करने के Then लिए, he was called. सुसमाचार के प्रति उत्तर देने के He लिए. was called for the gospel, and he was at last told to defend the gospel and be answerable. हालेलुया. Hallelujah. दूसरा तिमोथी 1 उसका 11. The book of 2 Timothy, chapter 1, verse 11. जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, जिसके लिए मैं प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. तो वो ठहराया गया, उस सुसमाचार के लिए वो ठहराया For the gospel, appointed a preacher, appointed. आप समझ रहे हो? अब किसी का अपॉइंटमेंट होती है ना, भाई ये इस डिपार्टमेंट में इसकी अपॉइंटमेंट हुई है जी, इसकी यहाँ पे लगी अपॉइंटमेंट. See, we understand when a person is appointed into a specific department, how the appointment is done. तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है, He is responsible. वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रह सकता, He is not उसकी एक जवाबदेही है किसी को, He is not limited to himself. He is answerable वो to the किसी के authority. अंडर है. He is under some authority. जब आप अपॉइंटेड हो, इसका मतलब आपकी जवाबदेही है. If you are appointed, that means you are answerable. हालेलुया. Hallelujah. अपॉइंटेड हो, आप ठहराए गए हो, आप नियुक्त करे गए हो. You are appointed. You are told. You are called. जब भी याद रखें, जब भी आप अपॉइंटेड होते हो, आप किसी के अंडर होते हो. When you are appointed, you are under someone. आप समझ रहे हो? चाहे अपने एक देश का प्रधानमंत्री भी अपॉइंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रावधान के अंडर है. When a prime minister is appointed, he also is under the constitution. आप समझ रहे हो? तो जब भी अपॉइंटमेंट होती है, वो किसी के प्रति जवाबदेही है. When a person is appointed, he is under somebody, under authority. हालेलुया. Hallelujah. तो हम देखते हैं पौलुस ने इस गहराई को समझा, Paul understood सुसमाचार की depth सामर्थ of को gospel. पहचाना, He understood the depth of gospel. और इसीलिए हम उसकी लाइफ में देखते हैं वो हियाव और दृढ़ता जो सुसमाचार को ले जाने के लिए बनी रही. That is the reason we see the boldness in him that he went to the Gentiles for the gospel. हालेलुया.